transistor. Okay, so what is small signal model? Okay, so suppose you have a diode. Okay, and now you are applying some DC source, this diode. Okay, say this is my VD. Okay, and VD is giving a current ID in the circuit. Okay, now along with this DC source, if I apply a small amplitude AC source, okay, so this is my AC source, a small amplitude AC source. Okay, so in that condition, say this is function of t, this is a small d. Okay, so what will happen? Okay, so for example, say this is my graph. Okay, this is my ID DC curve, capital ID. Okay, and this is my capital VD. Okay, so this is a DC current. Okay, so I'm applying voltage. Okay, and I'm getting some current, and at any point I can find a resistance. Okay, this is called my DC resistance. Okay, this is my Q point. Now what I'm doing, I'm applying a small amplitude of AC here. Okay, so say this is my this point, and say this is one more point. Okay, so this is the difference. Okay, so and this is my Q point. Okay, so here I'm applying one AC source. Okay, so what will happen if I apply AC source? Okay, some more voltage here. So what will happen if I apply some more voltage here? My current will also increase. Okay, so that means this Q point, okay, this Q point will shift. Okay, from here, this is Q point, DC Q point, it will go here and it will come back, it will go here, it will come back. Okay, so there will be small change in current. Okay, so this is 0. Okay, so I'll get some small change in current. Okay, because of this AC amplitude. Now we can show, we will show that these two sources, okay, we can take them independently. Okay, for example, if I want to see effect of this source, okay, I can switch off this one. Okay, but I can make it off. That means I can make it short circuit, and I can calculate DC current. Similarly, I can make it short circuit if it is a voltage source. If it is a current source, I can make it open source, and I can calculate the effect of this source. Okay, that means my, say this is DC current, and the current because of is AC source, say this is IAC. Okay, that two are separately I can calculate. Okay, now for example, let me prove something which is useful for you. Say my current ID. Okay, what is diode current? Diode current is given reverse saturation current. Okay, E, VD and thermal voltage -1. Is this correct? Expression sahi hai kya diode current ka? Okay, now if I want to write for forward bias, okay, so forward bias I can assume is VD and V is greater than 1. Okay, so I can write my ID is equal to IS exponential VD and VT for forward bias. Okay, just give me 1 minute. So this is my DC current. Okay, now I am applying a VDT. Okay, which is sum of this VD DC plus small
VDT. Okay, so substitute VD instead of VD, put this VD plus VDT. What will happen? Sir, मेरा हाँ. connection चला गया था तो can you just summarize what you have just told? Okay, so this is my forward current. Okay, this is my current equation. When I'm applying some voltage, okay, I'm getting some current from PN junction or from diode. This is diode current equation. Okay, so for forward bias, Okay, sir. I can neglect this one. Okay, and I can write my ID equals to IS exponential VD upon NVT. This is my equation, man. Okay, now I am applying two sources, VD plus VDT. So I can write this equation ID is equal to IS, okay, exponential VD plus small VDT, okay, upon eta VT. Okay, now I can write this as a ID IS exponential VD and VT. Okay, and I can write E VDT, okay, upon eta with thermal voltage. Now this is what? This is what? ID. ID. This is my ID. Okay. DC Okay, ID. Okay, so this is ID. This current expression we should write small ID, because this, to differentiate with this one. This is say this is total. Okay, this is total. So write it by ID. Okay, so this is now if you're changing this one, so ID. Okay, this is ID. Okay, this is capital ID. Okay, exponential VDT upon eta VT. Okay, now suppose my this VDT which I'm applying amplitude, that is small, very small amplitude. Okay, कितना small? VT की वैल्यू कितनी होती है रूम टेम्परेचर पे? 26 millivolt. 26 millivolt. Okay, और eta की वैल्यू जर्मेनियम के लिए 1, सिलिकॉन के लिए 2. Okay, so this become 50. Okay, so suppose my amplitude is 5 millivolts. Okay, this is 26, this is 50 millivolts. So this is between 5 to 10. Okay, so that is I can assume for small amplitudes this term is less than 1. Okay, so I can write this expression. So I can write ID is equal to capital DC current. This is IDC. Okay, you can write IDC also, DC current. Okay, and this exponential I can write 1 plus VD upon NVT. Okay, I have opened this exponential 1 plus x square terms, x square and higher order terms I have neglected. Okay, so this I can write ID equal to ID, okay, plus VD ID eta VT. Clear है यहाँ तक? So now this small ID, this is which is total current, okay, is equal to DC current plus VD, okay, and VT divided by ID. Okay, so say this NVT upon ID is a resistance. Okay, this NVT upon ID. Okay, this is my AC resistance. Okay, small signal resistance, okay, or we call it AC resistance also, AC resistance. Okay, so now I can write this is AC voltage, AC resistance, so this become AC current. So I can write ID, okay, DC current plus this is voltage upon resistance. Okay, this has become my IAC current. Okay, so so in this way we can separate these two effects. Okay, so in circuit if I want to find total current, okay, what I can do, I can just use my source, making it off, okay, by replacing short circuit. Okay, and I can calculate what is ID. Okay, and then I can simply shut off this one. Okay, I can short circuit this one, and I can calculate the effect of this AC source, and I can just calculate this current. So this will simplify our problems. Okay, दोनों source लगे हैं,
तो उनको इकट्ठा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एसी को अलग से सॉल्व कर लो स्मॉल सिग्नल के लिए ओनली। ओके, फॉर स्मॉल सिग्नल्स एसी के लिए सर्किट अलग से सॉल्व कर लो, डीसी के लिए अलग से सॉल्व कर लो। So that will greatly simplifies our problems while solving small signals amplitude AC circuits. Okay, ये क्लियर है? यस सर। ओके, सो अब आगे क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे थोड़ा से एक आध। So we have given one source. Say this is plus minus. Along with we have an AC source. This value is 12.7, and this is upon V input VAC. Okay. Now, and V input is VAC is equal to VP cos omega t. VP cos omega t, where VP value is given 100 millivolts. Okay, and then I can solve this one. Its resistance is given 9,900, and we have given diode 1, 2, 3, and 4. 4 diodes are given. Okay. Now what is asking? They're saying they are all silicon diodes. Okay. For them, the cutoff voltage, okay, is given as 0.7, and they say VT, that is KT upon Q. They're saying take it as a 25 milli electron volts, 25 volts, millivolts. Okay, 25 millivolts. Okay, so they're saying find IDC current, which we are calling capital D. Okay, find out ID. Okay, and AC output voltage amplitude. Here is output. Okay, is amplitude of AC voltage. Okay, output. So output is amplitude of AC output voltage. Okay, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? सर आईडी कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, पहले आईडी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, दिस इज 9,900 ohms है, तो आईडी कैसे निकलेगा? सर ये जो फोर्थ वाला डायोड है इसमें ये लाइन नहीं हुआ। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव उसी से डिनोट होता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो कैसे करेंगे इसको? आईडी सर ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो तो सर हो रहा है सर 0.7 वोल्टेज से ज्यादा हो रहा है हर एक के लिए। हाँ ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड करंट निकाल लेंगे 900 से ऐड करके। बिल्कुल, इन सबको ये सब सारे फॉरवर्ड बायस हो गए, क्योंकि ये इसको शॉर्ट करो। ठीक है, तो ये 12.7 वोल्ट जा रहा है इधर सब पे। ठीक है, दैट मींस ये 0.7 0.7 0.7 0.7। ओके, दैट मींस माय आईडी विल बी 12.7 0.7। ओके, और रेजिस्टेंस कितना है? 9,900। 9.9 किलो। ओके ओम। ओके, सो कितना आ जाएगा? 1 मिली एम्पियर। 12 माइनस ये कितना आ जाएगा? 2.8। कितना आएगा? 9.9। और ये 9 ये 9.9 तुम बोल रहे हो। ओके, 9,000, तो 1 मिली एम्पियर आ रहा सॉल्व करके, नहीं? यस सर। ओके, ये 0 आ गया, 91, तो 1 मिली एम्पियर आ गया। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर हमारा आईडी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, नाउ ये क्लियर है सबको? Okay, so if this is clear, okay, now you can try to calculate AC amplitude. Okay, amplitude of AC output amplitude। इनपुट दे रखा है आपको, आपको निकालना है। अब क्या करना है, इसको शॉर्ट कर दो, तो अब ये जो पूरा एम्पलीट्यूड है एसी का वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, आपको चाहिए वी आउटपुट वी आउटपुट निकालना है आपको।
तो V आउटपुट कैसे निकलेगा, बताओ फिर कैसे निकलेगा? सर जो अगर सारे डायोड्स ऑन हैं तो जितना वोल्टेज मेंटेन कर रहे हैं उतना ही तो आउटपुट आएगा ना। नहीं, आपकी एसी लगा रहे हैं, आपकी वो नहीं लगा रहे हैं, डीसी नहीं लगा रहे हैं कि 0.0 से नहीं करना है। अच्छा आपकी जब एसी लगा रहे हैं तो इसको आइडियल डायोड मानना है, आइडियल डायोड। ओके, आप अब आपकी ये बैटरी से रिप्लेस नहीं होगा, ये एसी लगा रहे हैं, आपकी इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है? ईटा VT बाई आर। हाँ, अभी निकाला जो रेजिस्टेंस इसका साथ ईटा ईटा VT बाई आर। ईटा वीटी बाय आईडी। ओके, जो डीसी करंट हमने निकाला है, जितना डीसी करंट, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो डीसी करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, एसी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीसी करंट। सर हाँ, प्लीज एक बार बता दोगे ईटा क्या है? मतलब मुझे इंटरनेट इशू था इसलिए मैं ज्वाइन हो नहीं पाई। ओके, ईटा ईटा तो हम यूज करते हैं ना डायोड इक्वेशन में, जर्मेनियम के लिए 1, सिलिकॉन के लिए 2। ओके, ओके, आइडियलिटी हाँ, आइडियलिटी फैक्टर। ओके, आइडियलिटी फैक्टर ना? yes, okay, and VT is thermal voltage, ID is your DC current which we just now calculated, okay, that जो कि Yes, 1 sir, got it. मिली एम्पियर है। ओके, तो अभी कितना आएगा इसके लिए ईटा इक्वल टू 1 ले लो क्वेश्चन में, ठीक है, तो कितना आएगा? VT मेरा कितना है 50। सिलिकॉन डायोड है ना? हाँ, नहीं सिलिकॉन नहीं, 25 मिलीवोल्ट। इसमें वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है ईटा के लिए ट्रू होगी ना, सिलिकॉन है ना सर? क्वेश्चन में दे रखा है ईटा इक्वल टू 1 लो, ठीक है, वरना 2 भी ले सकते थे, हमको क्या करना है, कैलकुलेशन चेंज होगा खाली, और क्या, ठीक है। 25 ओम ईटा तो- 1 इक्वल। हाँ, तो कितना आएगा ये 25 ओम आ 25 जाएगा, into 4। ओम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अभी हमको चाहिए आउटपुट चाहिए, ठीक है, हमको चाहिए वी आउटपुट चाहिए। अच्छा सर, हाँ ये तो एक डायोड का है ना? हाँ, एक पूरा का- एक डायोड का है, 4 डायोड का, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 डायोड हो Yes, जाएगा। सर। तो ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस और वोल्टेज डिवाइडर लगा दो तो आपको आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो वी आउटपुट कितना आ जाएगा आपका? वी आउटपुट वीपी कॉस ओमेगा टी, जो कि 100 मिलीवोल्ट रखा है, 100 मिलीवोल्ट। ओके, 100 इंटू कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी ये मिलीवोल्ट्स में है, ठीक है, इंटू आपका रेजिस्टेंस ये वाला 4 ओके, इंटू 25। ओके, ये आंसर मिलीवोल्ट में आएगा। और रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 9900। ओके, प्लस ये 400 और कितना आएगा आपके पास? ये कट ही गया, 100 10,000 कट ही गया, तो आपका बी नॉट कितना आ गया? कॉस ओमेगा टी आ गया बस, और क्या, कॉस भी है साथ में, हाँ कॉस तो है ही, ठीक है, कॉस ओमेगा टी मिलीवोल्ट। ओके, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है 1 ही है, 1 मिलीवोल्ट है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वीएम, 1 मिलीवोल्ट। सो ये पूछा है आंसर में। सर ये Clear है? AC सिग्नल का आया है ना? हाँ, और अगर टोटल पूछेंगे तो ID प्लस AC सिग्नल। टोटल कैसे निकालो? टोटल तो वो आ रहा था अपना 0.7 Yes, sir. 0.7 0.7 0.7। ओके, तो 2 पॉइंट कितना 2.8 और साथ में ये 1 मिलीवोल्ट। ओके, देखा ना ये कितना कम है, वो तो वोल्ट्स में आ रहा है, Yes, ये sir. मिलीवोल्ट्स में आ रहा है। तो इसलिए स्मॉल सिग्नल के लिए यू कैन सॉल्व दिस वे, इन दिस वे। ओके, क्लियर है? आगे चले। सर Yes, ये उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है 1 मिलीवोल्ट मतलब? ये वी इसका पीक वोल्टेज कितना है? हाँ, एम्पलीट्यूड कितना है? 1 है। 1 है। हाँ, ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरीके का, फिर चलते हैं क्रैम्पर्स। ओके, सो एक एसी सोर्स दे रखा है। ओके, दिस इज 5 sin omega t। ओके, and this diode is biased with some voltage V। okay, so that voltage is sufficient. This is a small amplitude compared to this one. This will always maintain this diode as at forward bias। okay, yeah, this is given, and we have one more 100 ohm resistance। okay,
Now he says a DC current of 26 microampere flows through the circuit. Okay, तो DC करंट कैलकुलेट करनी है, DC करंट ऑलरेडी दे दिया है क्योंकि V दिया नहीं है. ओके, तो इन्होंने डायरेक्ट ही दे दिया है कि तुम्हारा जो DC करंट है IDC और IDC जो बोलते हो वो 26 माइक्रोएम्पियर है और इसी को हमको चाहिए AC कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, and the diode in the circuit is forward biased and it has a identity factor of 1. तो ईटा भी 1 दे रखा है. ठीक है, at Q point the diode has a junction capacitance of 0.5 nanofarad. अब की जंक्शन कैपेसिटेंस दे दिया है 0.5 नैनोफैरड दे दिया है. ओके, एंड VT को बोल दिया है टेक इट एज अ 26 मिली. VT यू टेक इट एज अ 26 मिलीवोल्ट. ओके, तो अभी क्या है कि हमको जैसे हम खाली AC का इफेक्ट देखना है. ठीक, DC देखना ही नहीं है क्योंकि DC का इफेक्ट देख के जो करंट निकालना था वो ऑलरेडी दे रखा है. तो AC का दे रखा है पर अभी साथ में कैपेसिटेंस दे दिया है. ओके, सो व्हेनेवर कैपेसिटेंस इज गिवन इन क्वेश्चन, ओके, दैट मींस व्हाट यू डू, यू टू रिप्लेस दिस. इसको मिटा दो ना. Yes, so sir. you can replace the diode. Okay, इसका इफेक्ट देख नहीं रहे हम लोग. So you have one resistance, AC resistance of diode, and plus along with you have a capacitance, your capacitor, okay, of C equal to 0.2 nanofarad. Okay, and across this we have one resistance of 100 ohm. Okay, तो बस इसको तो solve ये कर. कैपेसिटर पैरेलल में क्यों लगाया जाता है? मतलब वो डायोड का जो इक्विवेलेंट मॉडल होता है, जंक्शन अच्छा, कैपेसिटेंस अच्छा. लगाते हैं. ठीक है, वो इसको हमेशा इसको पैरेलल में लगाते हैं. भी पैरेलल में होगा तभी उसका लीक रेजिस्टेंस कम होगा, तभी वो, वरना अगर सीरीज में कर देंगे तो वो क्या बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा. जनरली ये बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है जो उसके कैपेसिटर की जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है. इसमें उल्टा है, इसमें डायोड दे रखा है तो ताकि वो लीक नहीं होता है. ठीक है, तो लीक रेजिस्टेंस मींस हाँ. व्हाट सर? वो लीक रेजिस्टेंस कैपेसिटर केस में होता है. कैपेसिटर जब भी अच्छा. जोड़ते हैं ना साथ में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं. ठीक है, अच्छा. तो यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, बट वो हाई रेजिस्टेंस इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो वो अपने मेंशन नहीं करा यहाँ पर. सर मतलब सर उसका क्योंकि काउंट करने के लिए ऐसे करते हैं क्या हम? भी ये मॉडल है इसका भी, जंक्शन कैपेसिटेंस हमेशा इसके रेजिस्टेंस के पैरेलल में जुड़ेगा. ओके, अगर मुझे ये सर्किट, डायोड का रेजिस्टेंस है. हाँ, डायोड का रेजिस्टेंस है प्लस उसका जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा उसके पैरेलल में ऐड होगा. क्योंकि सर सर्किट्स जो भी मैं देखता हूँ ना, कैपेसिटर को वो पैरेलल में ही जोड़ा जाता है रेजिस्टेंस के. तो उसके पीछे का यही रीजन है क्या कि मतलब लीक रेजिस्टेंस कम होता है? वो कैपेसिटेंस के लिए लीक रेजिस्टेंस कम करने के लिए करते हैं, हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं उसके पैरेलल में. अच्छा. ठीक है, ओके सर. सो अब ये हो गया 100 ohms. ओके, तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कुछ नहीं है. आपको AC दे रखा है 5 sin ओमेगा t, 5 sin ओमेगा t. ओके, और आपको निकालना है, आउटपुट निकालना है. ठीक है, तो कैसे निकालोगे आउटपुट? आपको करंट निकालना है. आपको कुछ भी तो नहीं पूछा. ओमेगा की तो वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू भी दे रखी है 2 × 10⁻⁶. तो ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁶. ओके, रेडियन पर सेकेंड ओमेगा वैल्यू दे रखी है. और आपको पूछा है IAC कितना है. तो IAC कैसे निकलता है? IAC का एम्पलीट्यूड पूछा है. IAC का एम्पलीट्यूड. ओके, एम्पलीट्यूड VAC अपॉन R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं. कैपेसिटेंस का 1 अपॉन ओमेगा C होगा. तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, बस वोल्टेज दे रखा है तो 5 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आता ही निकालना. हम कैसे निकालते हैं? कैपेसिटर के केस में वो इंपीडेंस होता है. यस सर. कैपेसिटर XC कितना होता है? 1 अपॉन ओमेगा C. 1 upon omega c. J ओमेगा C. ओके, सो तो 1. ओके, फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना दे रखा है? 2 × 10⁻⁶. 2 × 10⁻26. सर 6 1 सर, 6 किलो मारा सर अंतर. 2 × 6. ओके, 10⁻6. ओके, इनटू C दे रखा है 0.5 10⁻⁻⁹. ओके, तो कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने से?
तो ये 10 हो गया। सर ये तो 5 × 10 (10⁻⁹ होगा ना? ये आ रहा है आपका XC 1 किलो। Negative में आ रहा है, मतलब कि हम्म? इमेजिनरी पार्ट लिखा हुआ है। हाँ, जे को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ऊपर लिखने के लिए जे नीचे था उसको ऊपर कर दिया, ठीक है। जे से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। और ये कितना है, आर कितना है, ये भी सर 1 किलो आर डी क्या होता है, एन बीटा ऑन आईडी। आईडी। ओके, सो ये एन टू 1 दे रखा है, ये आपको 26 दे दिया, माइक्रो एम्पियर दे दिया है। 1 किलो आ रहा है और ये भी 1 किलो हमारा ना, आईडी दे दिया आपको 26 सर। मिली, आईडी नीचे है सर। हाँ 26 मिली माइक्रो एम्पियर दे रखा है, और ये मिली वोल्ट दे रखा है। सो दिस विल आल्सो गिव यू 1 ओके 10⁻³ ओके। तो अब ये दोनों पैरेलल में है, प्लस ये सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो। 0.5 किलो। So if I solve the R equivalent, okay, or Z equivalent, okay, sorry, not R equivalent, okay, so that will be, ये दोनों पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ into minus J 10⁻³, ये तो क्या 10⁻³ minus J 10⁻³, okay, plus 100 हो, plus 100, okay, so इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 600 किलो। माइनस जे इंटू 10⁻⁶, ओके 10⁻³ कॉमन लेके लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस जे इंटू 10 ठीक है, और ये प्लस 100, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁶, तो माइनस जे अपॉन 1 माइनस जे, ओके 10⁻³ प्लस 100। अब इसको सॉल्व कर लो। सर ये जो Z इक्विवेलेंट में ये जो राइट हैंड साइड में 10⁻³ इंटू माइनस J 10⁻³ ये कैपेसिटर और ये हाँ रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है ना, RA प्लस RB प्लस R प्लस RA प्लस RB, R1 R2 R प्लस R2, ओके R2 अपना ये है इस बार, माइनस वाला है, ठीक है। तो कितना आएगा भी, इसको सॉल्व कर लो, इसको लाओ, जेड इक्विवेलेंट कितना जाएगा मेरा, ओके माइनस जे, ओके इसको माइनस 1100J प्लस 100 अपॉन 1 माइनस J, इसको 1 प्लस कर दो, उसको फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है ना, अब हमारी फॉर्म में लाने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जे, ओके एंड माइनस जे और जे स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ओके प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस 1 इंटू 10⁻³ प्लस 100, ओके तो ये क्या आ गया मेरे पास में, ये तो कट गया 2 500, सो 500 माइनस 500J प्लस 100, ओके दैट मीन्स 600 माइनस 500J, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो इसका एम्पलीट्यूड निकाल लो। सो नाउ आई हैव टू कैलकुलेट IAC, okay, IAC will be 5 millivolts divided by amplitude of these two numbers, कितना आएगा बताओ, मैंने निकाला कि नहीं निकाला, 7.8 into 10⁻², 600 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर, ओके तो मेरे पास जो आ रहा है आंसर आ रहा है रेजिस्टेंस, और ये तो करंट क्या हो जाएगा 600 प्लस 5, तो दिस इज गिविंग मी 6.4 माइक्रो एम्पियर, ये आ रहा है क्या, देखो हाँ सर। ये सर यही आ रहा है। ओके सो ये हो गया आपका स्मॉल सिग्नल मॉडल, ओके तो एग्जाम में आए तो सॉल्व कर लेना। नाउ वी आर मूविंग टू क्लैम्पर्स, ओके ये क्लियर है सबको, आगे चलें, यस सर। ओके सो क्लिपर क्लैम्पर, क्लिपिंग तो हो गया ना, दिस इज गिवन v input, okay v input equal to v peak sin omega t, okay that is given, and a capacitor is given, and then we have one diode is given, okay so this is
नेगेटिव क्लिपर्स, ओके, नेगेटिव क्लैम्पर्स, ओके। क्लैम्प का मतलब जो सिग्नल को शिफ्ट करते हैं ऊपर या नीचे, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव क्लैम्पर्स, ओके। दिस सी इज गिवन। सो ऐसे सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं? हमको इनपुट दे दिया है, दिस इज माय सर्किट का नाम क्या बताया? क्लैम्पर। क्लैम्पर्स, ये नेगेटिव क्लैम्पर है, क्लैम्पर। नेगेटिव साइड क्या को शिफ्ट करते हैं करते आपने? हैं। हाँ हाँ, नेगेटिव शिफ्ट करेगा, इसलिए नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट, ओके। तो इसमें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में? सर हाँ, क्या करते हैं आपने कुछ बताया था एग्जैक्ट नहीं कहा। किसके बारे में? क्लैम्पर्स क्लैम्पर का मतलब सिग्नल को शिफ्ट करते हैं, ओके। सिग्नल लेवल को, जैसे क्लिपिंग में क्या था, जो हमने पहले किया था, क्लिपर्स में वो सिग्नल को काट देते हैं, किसी पोर्शन को हटा देते हैं आउटपुट में। ये करते हैं, सिग्नल को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे, खाली शिफ्ट करें, उसका लेवल शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अभी 0 है तो इसको लेवल को ऊपर नीचे कर देंगे, शिफ्ट लेवल को शिफ्ट कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। दिस इज माय वी पीक और वीएम का वी मैक्सिमम कह सकते हैं। तो ऐसे सर्किट में क्या करेंगे? देखो, ऐसे सर्किट में सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो आपका जो आरसी है, टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर, दैट शुड बी ग्रेटर देन टाइम पीरियड ऑफ योर सिग्नल, ओके। तो इससे क्या होता है, अगर आरसी क्या है? आरसी द डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर is generally in the circuit is equal to 5 RC। 5 RC वजह से ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर RC ज्यादा होगा सर्किट में तो क्या हो जाएगा, एक बार ये चार्ज हो जाएगा ना, एक साइकिल की चार्ज हो गया, तो जब सेकंड साइकिल आएगी तो वो डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि उसका डिस्चार्ज पीरियड आपके टाइम पीरियड से, इस साइकिल का जो टाइम पीरियड है टी, ये t/2, ये टी, तो जो इसका जो टाइम पीरियड है उस टी की कंपैरिजन में इस कैपेसिटर का जो डिस्चार्जिंग टाइम है, एक बार चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज होने में टाइम होता है, वो बहुत ज्यादा है। तो आपने एक पीक लगाया तो वो चार्ज हो गया, सेकंड पीक में भी वो चार्ज ही रहेगा, क्योंकि वो टाइम पीरियड इतना कम है, क्योंकि वो इसको या तो रिवर्स में इसको चार्ज नहीं कर पाएगा, क्लियर। तो ये आरसी, तो क्लैम्पर सर्किट की सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपका जो आरसी है दैट शुड बी वेरी हायर, ग्रेटर देन योर टाइम पीरियड। अब इस क्वेश्चन में हाँ, ये जस्ट टोल्ड कि फर्स्ट साइकिल में वो चार्ज हो जाएगा, फर्स्ट साइकिल में बोला है, जीरो से t/2 में। अभी मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट चार्ज, तो वो बहुत एक्चुअली जनरली क्या होता है, जो चार्ज होने में टाइम लगता है उसको t/4 टाइम लगता है, ठीक है। पर हम क्वेश्चन में ऐसा अगर दे नहीं रखा है तो हम मानेंगे कि ये बहुत क्विकली चार्ज हो जाता है। जैसे 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 इसको चार्ज करेंगे वो विदिन फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टी, ओके। सपोज यहाँ 1.1 टी टाइम पे ये चार्ज हो गया, पूरा चार्ज हो गया, ठीक है। अब सेकंड टाइम पे अब वो चार्ज का चार्ज ही रहेगा। सेकंड टाइम पे अगर आप इसको रिवर्स में चार्ज करने की कोशिश करोगे तो भी वो चार्ज नहीं होगा, वो फॉरवर्ड में एक बार चार्ज हो गया तो चार्ज हो गया, ठीक है। अब वो डिस्चार्ज भी नहीं होगा, अच्छा, ठीक है, मतलब डिस्चार्ज भी नहीं होगा, चार्ज ही रहेगा। चार्ज ही रहेगा। तो इसका मतलब वो बैटरी बन जाएगा, उसका उस पर एक वोल्टेज आ जाएगा, दैट मीन्स वो एक बैटरी बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इसको चार्ज किया तो अभी क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड, ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और इस पे ये क्या आ जाएगा, वीपी वोल्टेज आ जाएगा, V-1। तो पहले तो क्या होगा, पहले तो चार्ज होने के लिए करंट फ्लो होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं ये पॉजिटिव साइकिल में ये फॉरवर्ड बायस है, ओके। जैसे फॉरवर्ड है तो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट होते ही ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और ये चार्ज होकर कितना आ जाएगा, ये वीपी आ जाएगा, ठीक है। अब ये वीपी या तो इसके बराबर है एम्पलीट्यूड में या इससे ज्यादा है, ठीक है। दैट मींस जैसे चार्ज होगा ये डायोड क्या हो जाएगा आपका, अभी आपकी डायोड आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा। अच्छा, चार्ज होने के बाद ये डायोड रिवर्स में हो जाएगा, चार्ज रिवर्स बायस में हो जाएगा, दैट मींस नाउ यू कैन मेक दिस सर्किट ओपन, ओके। रिवर्स में इसलिए हो गया, ये पोटेंशियल में हो गया तो ये डायोड रिवर्स में हो गया। अब ये टोटल सम क्या लग रहा है इस पे, भी इसको फॉरवर्ड करने के लिए कुछ पॉजिटिव चाहिए ना, पर अब तो ये नेगेटिव लग रहा है, नेगेटिव होता, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे वी आउटपुट मिलेगा, इसके ले लो या इस पे ले लो, दोनों सेम ही आएगा वी आउटपुट। तो वी आउटपुट कितना आएगा आपका, वी इनपुट, ओके, माइनस
VC। VP। ओके, पहले आपको निकालना पड़ेगा कि कैपेसिटर में कितना वोल्टेज है। अभी के केस में क्या था, यहाँ पे डायोड था। ओके, डायोड था जिसपे फॉरवर्ड बायस में ये कोई शॉर्ट हुआ था। वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा था। तो जो भी हम इसमें KCL लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, KCL V इनपुट, ओके, V इनपुट माइनस प्लस V कैपेसिटर इक्वल्स टू 0। सो हमारा V कैपेसिटर इक्वल टू V इनपुट का पीक आ गया, जो V पीक। ओके, सो V पीक आ गया हमारा। तो इस केस में तो क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो मेरा ये फुल्ली चार्ज हो गया। जरूरी नहीं है कुछ नहीं हो, या कुछ हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ चार्ज करने के लिए कुछ डायोड दे रखा हो। ओके, जैसे सिलिकॉन डायोड दे रखा हो, आइडियल नहीं है तो 0.7 तो आएगा इस पे भी। ओके, तो अब इस केस में क्या हो गया, ये जो भी चार्ज हो गया फुल्ली इस पे आ गया। अब की ये सर्किट ओपन हो गया। नाउ आई वांट व्हाट, आई वांट माय V आउटपुट। सो माय V आउटपुट विल बी ऑलवेज V इनपुट, ओके, माइनस V इनपुट माइनस VC और VP। ओके, सो V इनपुट माइनस VP। ओके, तो निकालो VP कितना है। तो ये 0, जब 0 आएगा तो ये कितना आएगा, अब ड्रॉ कैसे करेंगे, जब ये 0 आएगा तो यहाँ कितना आएगा आउटपुट में, माइनस VP। ओके, माइनस VP। और जब ये पीक पहुंचेगा तो 0 आ जाएगा, तो ये जब यहाँ पहुंचेगा तो ये 0 आ जाएगा। ओके, ओके, फिर नीचे आएगा, फिर ये माइनस से पहुंचेगा तो ये 2P पहुंच जाएगा, माइनस 2VP। ओके, और जब ये 0 आएगा तो ये माइनस VP आ गया। ठीक है, सो इसी तरह आगे आगे करोगे इसको तो ये आगे ऐसा कैसा चलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भी, आपको मैंने इसमें से V पीक में से मैंने इसको V लेवल शिफ्ट कर दिया सिग्नल को। ओके, कुछ नहीं किया, डिस्टॉर्ट तो सिग्नल हुआ नहीं। ओके, इस हर वैल्यू में से मैंने V पीक माइनस कर दिया, तो V पीक माइनस करते ये 0 हो गया। ठीक है, ये मेरा 0 लेवल है, तो ये पीक 0 हो गया, ये माइनस हो गया। ओके, ये जो माइनस था वो 2 VP पे चला गया। तो आपका पूरा का पूरा जो सर्किट है, आपका सिग्नल है, वो खाली शिफ्ट हो गया। इसको बोलते हैं क्लैंपिंग। ओके, क्लैंपिंग ऑफ सिग्नल। क्लियर है सर? एक डाउट है, आपने बताया था कि एक क्लोज्ड जो हमारा डायोड है वो क्लोज्ड स्विच के जैसे, मतलब क्लोज्ड सर्किट के जैसे काम करेगा। तो वो जब कंडीशन बताइए, मतलब कब वो क्लोज्ड, मतलब ओपन सर्किट के जैसे वो समझ में आया, लेकिन क्लोज का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आइडियल डायोड है ना, फॉरवर्ड बायस लगा रहे हैं हम लोग, तो आइडियल डायोड तो इसका शॉर्ट सर्किट ही है। आइडियल डायोड इसका वोल्टेज ड्रॉप कुछ हो ही नहीं रहा है इस पे। वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है तो शॉर्ट सर्किट ही लेंगे ना, और शॉर्ट सर्किट होते ही ये करंट फ्लो शुरू हो जाएगा, और ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। एक बार ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, जैसे ये चार्ज हो गया, ये इससे ज्यादा हो गया हमेशा के लिए, तो ये ओपन हो गया। So you can find out V output now. Capacitor charging, it behave as a short circuit. शॉर्ट सर्किट। ओके, अभी क्वेश्चन करेंगे, एक आध क्वेश्चन और करेंगे अभी तो। ठीक है सर, ये चार्ज होने के बाद ये अकॉर्डिंग टू VP डायोड रिवर्स में हो जा रहा है, इसलिए ओपन हो रहा है ना। हाँ, सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में वैसे ही ओपन हो जाएगा वो, क्योंकि ये रिवर्स हो जा रहा है VP के अकॉर्डिंग। वैसे भी ये भी इसको रिवर्स कर रहा है, पहले ये इसको पहले से रिवर्स कर रहा है, फिर तुम ऊपर से वो लगा रहे हो और रिवर्स कर रहे हो, वो तो वैसे ही रिवर्स में ही है। सेकंड में वैसे ही रहेगा। सेकंड साइकिल अगर नहीं भी होता तो भी वो इसको हमेशा इसको नेगेटिव ही रखता है इसको। ठीक है, क्योंकि हाँ, रिवर्स साइकिल में वैसे भी नहीं रिवर्स, क्योंकि ये RC ग्रेटर देन टाइम वो डिस्चार्ज होगा ही नहीं, उसको हमेशा नेगेटिव में रखेगा। ठीक है, यस सर। आगे चले। यस सर। सर, ये जो रिवर्स हुआ उसके बाद वो फॉरवर्ड कभी भी हो सकता है? फिर तो बात वापस फॉरवर्ड आएगा तो वापस उसको मैक्सिमम, अगर थोड़ा सा मान ले सपोज 0.1p चला गया, इसमें चला गया, डिस्चार्ज हो गया। आइडियली तो हम मानते नहीं है, मान ला कि 0.1p चला गया तो फिर आगे फिर चार्ज कर देगा उसको फॉरवर्ड साइकिल में, फिर फॉरवर्ड करके फिर पहले वाली इसकी चीज हो जाएगी वापस। वो थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा, जैसे ये मेरा कैपेसिटर लेवल इतना है, थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा, ऐसा हुआ, फिर वापस से चला जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कैपेसिटर मेरा फिल्टर में करते हैं ना, तो ये कैपेसिटर लगाते हैं इसलिए फिल्टर में, ताकि वो कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन रखे। ओके, तो प्लस साइकिल में फिर दोबारा के चार्ज हो जाएगा वो उसी साइड में। तो हमेशा चार्ज होने के बाद कांस्टेंट वोल्टेज चार्ज होने के बाद मैं मान रहा हूँ कि ये
ये फिक्स है, ओके। लेकिन हम सिग्नल चलाए जा रहे हैं, अब मैंने बोला आरसी इज ग्रेटर देन टाइम टी, तो आरसी कितना है, 10t हो सकता है, 20t हो सकता है, उसके बाद तो डिस्चार्ज होगा ना, पर वो डिस्चार्ज होगा ही नहीं ना, क्योंकि हर बार एक साइकिल के बाद ही ये वापस चार्ज हो जाएगा पूरा, अगर थोड़ा सा कम भी हुआ है वापस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 साइकिल और कम होगा, लेकिन वो उसको हर साइकिल के बाद वो चार्ज भी तो हो रहा है, दोबारा चार्ज भी हो रहा है, तो वो हमेशा वीपी पे मेंटेन ही रहेगा, पीक वोल्टेज पे मेंटेन रहेगा वो। मतलब ये कंडीशन अगर नहीं होगी तो ऐसा तो हो जाएगा फिर अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो देखेंगे, तो फिर वो क्लैंपर नहीं बनेगा, वो कुछ साइकिल की क्लैंपर बनेगा, देखेंगे कैसा करता है वो क्लैंपर नहीं, ठीक है। लेकिन वो आइडियल क्लैंपर नहीं, क्लैंपर की कंडीशन यही है, ओके। अच्छे सिग्नल क्लैंप करने के लिए कंडीशन ये है कि योर आरसी शुड बी ग्रेटर देन द टाइम पीरियड। सर यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं हो पाए किसी केस में, तो फिर सर वो क्लीपर सर्किट की तरह काम नहीं करेगा, नहीं, पॉप नहीं करेगा नहीं, फिर वो क्या है, चार्ज वो देखना पड़ेगा, वो फिर वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, फिर वो हर साइकिल पे कितना डिस्चार्ज हो रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस साइकिल में कितना डिस्चार्ज हुआ, फिर वापस चार्ज कितना हुआ, कितना डिस्चार्ज हुआ, ठीक है। उसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, जैसे हम लोग फिल्टर में करते हैं, रेक्टिफायर और रेक्टिफायर में करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो फिल्टर सर्किट निकालते हैं, क्योंकि रेक्टिफायर में जो हमको आउटपुट मिलता है वो डीसी तो होता है, पर इसमें फिर भी अभी भी तो पल्सेस तो है ना, अब हमको तो पूरा डीसी करना है, ठीक है। तो उसको फिल्टर सर्किट लगाना पड़ेगा, कैपेसिटर लगाना पड़ते हैं, ओके। कैपेसिटर सर्किट तो वो क्या है, इस पूरे पल्स को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देता है, उसका भी एक क्वेश्चन देख लेंगे उसका, ठीक है। सो नाउ एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में तुम्हारा चलो कर ही देता, अब तो तुमको समझ में आएगा ना। तो ये एक सिग्नल दे रहा हूं मैं, पी इनपुट, स्क्वायर वेव दे रहे हैं, ठीक है। कैपेसिटर दे दिया मैंने 10 नैनोफैरड, एंड दिस इज 500 किलो ओम, then this is diode, okay. So this is my V output. Now it is giving signal, the on time is 1 millisecond, okay. तो मेरा सिग्नल दे रखा है जिसका ऑन टाइम क्या है 1 मिलीसेकेंड, ओके। एंड इसका जो ऑफ टाइम है सिग्नल का, दैट इज ओनली, इसको यहीं पर ड्रॉ करते हैं, दिस इज माय सर्किट, ओके। सो ये मेरा इनपुट पल्स है, दैट इज ऑफ, देन इट्स ऑन, ओके। सो ऑन टाइम है इसका 1 मिलीसेकेंड, एंड दिस इज ऑफ टाइम इज 1 माइक्रोसेकेंड। ऑफ टाइम का मतलब जब जीरो है, सिग्नल मेरा जीरो है, और इसका वैल्यू दे रखा है, पल्स दे रखा है 10 मिलीवोल्ट्स का, 10 मिलीवोल्ट्स का पल्स है, और ये सिग्नल दे रहा है। तो अब पूछ रहा है कि आउटपुट कैसा होगा, वी आउटपुट निकालो, ओके। सो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि आपकी इन्होंने टाइम दे रखा है, इन्होंने टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है ना, 1 मिलीसेकंड दे रखा है, तो एक साइकिल कितना है 1 मिलीसेकंड प्लस 1 माइक्रोसेकंड। तो पहले आरसी वैल्यू देखना पड़ेगा, आरसी वैल्यू कितना है, आरसी कितना है 500 10⁻³ इंटू 10 माइनस 9, कितना आ रहा है सेकंड्स, 5 into 10⁻³ नहीं इसको सॉल्व करो ना, कितना आएगा, तो 5 मिलीसेकंड आ रहा है, 5 मिलीसेकंड आ रहा है क्या, 550 हाँ। तो 10 6 -3 मतलब 5 मिलीसेकंड, 5 मिलीसेकंड और 3 वो है, 5 मिलीसेकंड आ रहा है, ओके, ठीक है। सो अभी 5 मिलीसेकंड 1 मिलीसेकंड तो ज्यादा ही है, ठीक है। और जो आरसी टाइम होता है, जो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम होता है, वो कितना होता है, मिनिमम 5 आरसी। तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 मिलीसेकंड हो जाएगा, अगर ये कैलकुलेशन सही है, अगर तुमने सही करा है तो 4 10⁻+5, ओके, ज्यादा आएगा ना, तो नहीं सर 5 मिलीसेकंड ही आ रहा है, हाँ ठीक है। तो ये हाँ बोलिए, ऑप्शन तो ज्यादा ही है, टाइम पीरियड 1 मिलीसेकंड प्लस 1 माइक्रोसेकंड ऐसा आएगा ना, हाँ वो तो 1 माइक्रोसेकंड तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो 1 मिलीसेकंड में क्या है, ठीक है, ओके, वो तो 0.00 मिलीसेकंड हो गया, ठीक है।
तो ये 1 मिली सेकेंड के कंपेरिजन में ये बहुत ज्यादा है। डिस्चार्जिंग टाइम इसका 25 मिली सेकेंड है, तो कंडीशन हमारी वैलिड है, मतलब ये क्लैंपर कर सकता है, ठीक है ना, क्लैंपिंग का प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो वैसे ही जो पॉजिटिव साइकिल आएगा, पॉजिटिव साइकिल में क्या हो जाएगा, ये पीक वैल्यू तक 10 वोल्ट तक 10 मिली वोल्ट। हाँ 5 वाट्स ओके वो सर एक बार बताइए कौन सा 5 5। वाट्स सो डिस्चार्जिंग टाइम किसी भी कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम दैट इज इक्वल टू एटलीस्ट 5 आरसी तो होता ही है, 5 टॉ। डिस्चार्जिंग टाइम किसी भी कैपेसिटर का 5 टॉ होता है। तो ये क्या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है? हाँ मतलब सारे कैपेसिटर ऐसे डिजाइन होते हैं, डिस्चार्ज होने में उसके जितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका 5-10 टाइम तो लेते ही हैं, ठीक है, मिनिमम है तो इतना लेते ही हैं। हाँ सर बट तो हमारा यहाँ पर क्या काम करेगा डिस्चार्जिंग टाइम पे? डिस्चार्जिंग टाइम बोल रहा है कि एक बार चार्ज कर दिया तो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो अगर इसको ऐसे छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद तो डिस्चार्ज हो जाएगा वो वापस, ठीक है। कैपेसिटर बैटरी की तरह नहीं होता है, कैपेसिटर को आपने रेजिस्टेंस लगा दिया उसके, तो क्या वापस उससे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप क्योंकि डिस्चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा है, मेरे सिग्नल के कंपेरिजन बहुत ज्यादा है, तो एक बार आपने इस साइकिल में इसको चार्ज कर दिया तो इस साइकिल में वो क्या डिस्चार्ज नहीं होगा। 1 माइक्रो सेकंड तो बहुत कम है इस कंपेरिजन में, ठीक है। तो वो वोल्टेज फिक्स रहेगा, फिर दोबारा वापस आ रहे हैं तो वापस इसको वापस चार्ज कर रहा है, अगर वो डिस्चार्ज हो रहा भी थोड़ा हो भी रहा है तो इसको वापस चार्ज कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि इसका वोल्टेज मेंटेन रहेगा आपकी। अब ये एक बार चार्ज हो गया, ठीक है, प्लस माइनस 10 वोल्ट है अगर ये, ठीक है, 10 वोल्ट तक वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है, पहले तो देखना पड़ेगा इस पर 10 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10 वोल्ट कैसे आएगा, आप सिग्नल लगा रहे हो, ठीक है, सिग्नल में ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अभी जितना भी पीक वोल्टेज है वो इसी पे आएगा, इस पे नहीं आएगा। बीसी इक्वल टू क्या जाएगा, वी पीक, जो भी है 10 वोल्ट्स। अगर कुछ और लगा हुआ होता तो वहां पे भी होता। अभी क्या है, क्योंकि हम जैसे ही फ्लो कर रहे हैं करंट, तो मेरा ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है एंड वी कैन रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट, तो सारा का सारा वोल्टेज जो इनपुट है वो इसी पे चला गया, तो ये वी मैक्सिमम वी इसके मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। ओके, अभी तो ये स्क्वायर वेव है, साइन होता तो मैक्सिमम होता है, इसमें तो कांस्टेंट है, तो ये 10 वोल्ट तक चार्ज हो गया। ओके, 10 वोल्ट तक चार्ज होते ही, ठीक है, तो चार्जिंग में फॉरवर्ड होगा ना? हाँ चार्ज हो गया, मतलब चार्ज हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चार्ज होगा। डायोड की जब भी लगाना हो क्लैंपिंग सर्किट और कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत सी साइकिल दे रखी है, तो आप देखना कौन सी साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है, फर्स्ट में है कि सेकंड में है कि, ठीक है, तो हमेशा चार्ज वैसे ही करना है जहां से डायोड फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। फॉरवर्ड में हो तो रहा है। अभी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, अब वापस, अब तो ये 10 -10 कोई वोल्टेज लग नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वापस ओपन हो जाएगा। और फिर रिवर्स में तो वैसे भी थोड़े टाइम के लिए ओपन ही रहेगा, ठीक है, ये और ये भी इसको कही रहा है, तो हमेशा आपका जो वी आउटपुट आएगा दैट इज वी इनपुट माइनस वीसी। ओके, वीसी इस पर 10 है तो वी इनपुट माइनस 10। ओके, सो यहाँ 10 ही है तो 10 - 10 0। ओके, 10 - 10 0, और ये जो है ये 0 है, तो ये आएगा कहाँ तक जाएगा, -10 तक जाएगा, -10 तक छोटा वाला। -10, ओके, और फिर ये फिर 0, ओके, फिर ये थोड़े टाइम के लिए ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, सिग्नल तो वही है, ये वाला सिग्नल है, ठीक है, इसको हमने शिफ्ट कर दिया, क्लैंप कर दिया, 10 वोल्ट से क्लैंप कर दिया नीचे, ये 10 से अच्छा 0। सर, मतलब ये चार्जिंग में ही वी आउटपुट 0 आ गया, और सर रिवर्स में नीचे कैसे चला गया, -10 कैसे आ गया? अभी निकालो ना, अभी केसीएल लगा दो ना यहाँ पे, ये इस सर्किट में आपको वी आउटपुट चाहिए, तो ये प्लस ये और ये, तो वी आउटपुट क्या आएगा, वी आउटपुट आएगा आपका वी इनपुट -10। इनपुट -10। यस सर, तो सर इसमें भी तो वी इनपुट 10 हो रहा है। हाँ, तो 10 -10 0 हो गया ना। तो सर नीचे वाले में -10 वोल्ट, रिवर्स केस में -10 वोल्ट कैसा आ गया? उसमें भी ये आएगा, निकाल के देख लो, उसमें भी वी इनपुट -10 ही आएगा, बस यहाँ पे आपको रिवर्स वोल्टेज लगाना पड़ेगा आपकी, ठीक है। अच्छा, अभी 0 ही है, तो अभी रिवर्स में साइकिल ही नहीं है, अगर रिवर्स साइकिल होता तो रिवर्स में माइनस कर देता, अभी 0 ही है रिवर्स में, तो मतलब 0 है ही नहीं, तो माइनस आ रहा है आपका, ठीक है। आगे चले।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, टाइम हो गया क्या? तो अब होमवर्क दे देते हैं क्वेश्चन का, ठीक है? एज अ एग्जिट सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस उसमें एक डाउट है। हाँ। हम जो क्लैंपर के लिए कंडीशन लेते हैं वो आरसी इज वेरी मच ग्रेटर देन टाइम पीरियड ना, डिस्चार्जिंग टाइम कंसिडर नहीं करते हैं ना हम? हेलो सर, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल नाउ? यस हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ बोलो सर। मतलब जो हमें क्लैंपर आरसी की कंडीशन देते हैं ना, डिस्चार्जिंग टाइम हम कंपेयर नहीं करते हैं ना, आरसी इज वेरी मच वही लेते हैं ना। वो तो आरसी कर लो, आरसी हो गया तो 5 आरसी अपने में हो जाएगा, ठीक है? भी आरसी हो गया, अगर आरसी ज्यादा है टी से तो डिस्चार्जिंग टाइम तो ऑब्वियसली ज्यादा हो गई, ठीक है? सो एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी, कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड दे रखा है, ठीक है? डायोड दे रखा है आपको, फिर एक जीनर डायोड दे रखा है, ओके? और ठीक है, जहां भी कैपेसिटर डायोड से पहले आ जाए समझ लेना क्लैंपर सर्किट ही है। आपको वी आउटपुट पूछा है, वी इनपुट आपको दे रखा है, ओके? दिस इज 14 माइनस 14 वोल्ट है ये आपका वी इनपुट दे दिया आपको, और वी आउटपुट पूछ रहा है आपको, वी आउटपुट पूछ रहा है, ओके? वी आउटपुट मतलब ये पूछ रहा है वी मैक्स कितना होगा सर्किट में और वी मिनिमम कितना होगा। आप चाहो तो उसको ड्रॉ भी कर दो, और इसके लिए इसने दे रखा है ये सिलिकॉन डायोड है, 0.7 है फॉरवर्ड बायस में, और ये तो रिवर्स बायस में 6.8 है, 8 वोल्ट है, ओके? एक रेजिस्टेंस भी दे रखा है सर्किट में 10 ओम का, दिस इज 0.7 6.8, ओके? और इनपुट का वोल्टेज दे रखा है 14 वोल्ट दे रखा है, ठीक है? तो जैसे क्वेश्चन पहले किया था मैंने, वही सेम ही क्वेश्चन है, पर इसमें इस क्वेश्चन में फर्क क्या आएगा? क्या फर्क आएगा इसमें? इसमें ये डायोड, इसमें फर्क आएगा। इसमें जो वीसी कितना होगा निकालना पड़ेगा पहले। अब की वीसी 14 वीसी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये भी है ना 0.7 प्लस 6.8 सर। हाँ, तो में सर 7.5 हो जाएगा। हाँ, तो बाकी बचा हुआ इधर आ जाएगा, ठीक है? जो यहाँ पे आएगा बाकी बचा इधर आ जाएगा। और रिवर्स में क्या होगा, जब ये रिवर्स कर रहे हैं तो रिवर्स में जब यहाँ से ये तो फॉरवर्ड आ गया, ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, तो रिवर्स में तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, यस सर। ठीक है? रिवर्स में ये पूरा ओपन हो जाएगा, फॉरवर्ड में ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है? और वैसे कंडीशन वही है कि आपका आरसी इज ग्रेटर देन टी, ओके? तो ये एक बार मेंटेन हो जाएगा, ये इसको रिवर्स बायस, ये इसको फॉरवर्ड बायस कर जाएगा, फिर ये क्या यहाँ वोल्टेज मेंटेन हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है ना? तो वो वोल्टेज इसको इतना कितना रखेगा फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में ये ओपन हो जाएगा। तो आप इसको करके बताओ मुझे, ठीक है? ये होमवर्क है, मुझे करके भेजना और कल बताना है तो, ठीक है? सो आई एम स्टॉपिंग क्लास हियर, ओके? थैंक यू सर।